Good afternoon, guys. What we are going to do is we are going to continue with our reading of Rakesh Mohan, whereby we will discuss about the path that India needs to take in the next 15 to 20 odd years to revert to our the golden growth period. Now, we had seen what we had seen is we had discussed about that how in an economy savings and investment are extremely critical. And अगर आप invest करना चाहते हो और investment becomes your GDP growth rate through the concept of ICOR. Now, if you want to increase the GDP growth rate, if this is your aim, if your aim is to increase the GDP, you have two alternatives. One is increase your investments. ठीक है, या तो आप इसको इंक्रीज करो तो अपने आप आपका जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगा. और दूसरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल एफिशिएंसी, दैट मींस आप आईसीओआर को रिड्यूस करो. तो ये आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं टू इंक्रीज योर जीडीपी ग्रोथ रेट. We will see that in the last 7 odd years, not only has the GCF been falling, India's ICOR has also been increasing, which basically translates into poorer efficiency. In fact, it has reached somewhere around 4.9 round. So we will see this through the reading. So this is one of the issues, and we need to tackle both these things. And the other thing that we already have seen through injection and leakages is that you cannot just increase the investment. You can't just increase the investment. Investment has to be financed. So this investment needs to be financed, and this investment financing has to come from the savers. Now, who are the savers? Households, corporates, and government. इसमें households is the biggest saver. And we will see in this part that household का जो savings है वो continuously गिर रहा है. Financial savings जो है वो continuously कुछ time से गिर रही हैं. And because that is falling, it has become a huge strain. और दूसरी क्या चीज हो रही है that we will see is that जो भी ये saving household कर रहे हैं उसको rather than corporates ले जाने के बजाय उसको government capture कर रही है. Now, can you give me an example ki how is government capturing this saving? You have already done this in your budget course. कि government basically किस तरीके से इस savings को capture कर रही है आज की डेट में, and basically not letting the corporate sector its share of investment. What is that term called and how is it government doing? Term तो I think last class में आप लोगों ने बताया था. What is it, guys? Come on, guys. कैसे government कर रही है? गवर्नमेंट ये सेविंग को कैसे अप्रोप्रिएट कर रही है और उसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ क्या हो रहा है? यस, हाउ इज दिस क्राउडिंग आउट हैपनिंग, स्वस्ति? The savings of the household sector basically does its expenditure out of it, and corporate expenditure is also based out of that. I'm looking for a technical term for this. Expenditure over income. What is it called? Deficits, exactly. So what government is doing, you will understand in this chapter, what the government in the past few years is doing. Government is running huge fiscal deficits. Fiscal deficit क्या होता है गाइस? हमने वो देखा था, बोरोइंग्स होती हैं. तो मार्केट के अंदर अगर हाउसहोल्ड इन सब ने मिला के मार्केट के अंदर 100 रुपए डाल दिए मान लो, अब गवर्नमेंट उसमें से बहुत ज्यादा बोरो कर लेगा. अगर गवर्नमेंट विल बोरो अ लायन शेयर ऑफ दिस, व्हाट विल हैपन? Then that means the amount left, this is the amount that is left for the private sector, which is basically crowding out. And not only that, this amount will be at a higher premium. उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा. तो गवर्नमेंट इज क्राउडिंग आउट, नॉट जस्ट क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट मार्केट में पुश कर रहा है. उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नाउ टर्निंग इनटू अ नॉन स्टार्टर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रहा है. एंड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन भी फेल हो जाता है यहाँ पर. मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इन मनी एंड बैंकिंग एज वेल. ठीक है, किस तरीके से आरबीआई की पॉलिसीज अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट को इंपैक्ट करती हैं. दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो टीच फॉर सिविल्स के उसके अंदर कि देयर इज अ होल चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया के केस में ब्रेक डाउन हो जाता है. टू जस्ट गिव यू अ स्मॉल दिस थिंग दैट गवर्नमेंट, आरबीआई के हाथ में क्या होता है? आरबीआई के हाथ में रेपो रेट्स होते हैं. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, यू विल अगेन, आई एम नॉट गोइंग इनटू मनी एंड बैंकिंग गाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू. फिर उसके बाद होते हैं इंटरमीडिएट टारगेट्स.
जो गवर्नमेंट अचीव करने की कोशिश करती है या सेंट्रल बैंक अचीव करने की कोशिश करती है, एंड फाइनल टारगेट्स, फाइनल गोल। तो जो आरबीआई है उसका फाइनल गोल आज की डेट में क्या है गाइस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ आरबीआई? यू माइट नॉट हैव रेड दिस इन योर लास्ट 3 years, 2.5 years. आरबीआई का बट फाइनल गोल क्या है? व्हाट इज द पैरामीटर विच आरबीआई इज वेरी कंसर्न विद? इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एग्जैक्टली। आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखना। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग. You will again understand this in your money and banking course, an extremely important concept when it comes to all competitive examinations. ठीक है, तो आपको इस रेंज में आपको इस रेंज में इन्फ्लेशन रखना है, और इन्फ्लेशन इस रेंज में रखना है तो व्हाट हैपेंस इज आपको बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स भी, और सिर्फ ये गोल नहीं होता आपका गोल साथ में, दिस इज द प्राइम गोल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट योर अदर गोल्स आर ऑल्सो लाइक कि आप जीडीपी ग्रोथ रेट को भी आपको देखना है, बीओपी भी देखना है। तो आपके पास इंटरमीडिएट, इसको अचीव करने के लिए आपके पास एक इंटरमीडिएट गोल भी होते हैं कि अच्छा अगर ये इतना मुझे इन्फ्लेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे इंटरेस्ट रेट कितना रखना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट। मार्केट में हम देखते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट को टारगेट करता है आरबीआई, ठीक है, कि इस रेंज में रहना चाहिए, और उसके हिसाब से वो अपना रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को ऊपर नीचे करते हैं कि वेटेड एवरेज कॉल रेट एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाए, सो दैट वी आर एबल टू अचीव द टारगेट्स। माइट आपको हो सकता है 70% ही समझ ना आया और 80% ना समझ में आया, बट यू शुड नो दैट दिस इज हाउ योर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। आरबीआई इस तरीके से अचीव करने की कोशिश करता है, बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा बोरो कर रहा है कि ये जो अगर आरबीआई चाह के भी इंटरेस्ट रेट कम करता है कि बॉस की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, तो वो पास ऑन नहीं हो पाता क्योंकि गवर्नमेंट एक लायन शेयर ले जा रहा है मार्केट से, ठीक है। सो वी विल सी दिस, वी विल टॉक अबाउट दिस प्रॉब्ली इन डिटेल इन मंडेज क्लास एज वेल, बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। देन वी ऑल्सो सॉ कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो गिर रही हैं। सी दिस इज द एस्पेक्ट दैट आई वाज टेलिंग यू विच इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। ये आप देख रहे हो आपकी हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो 10% पे थी एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, अब 7.2% पे। दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक इशू कि आपकी ये जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं गिर रही हैं। यूजुअली फाइनेंशियल सेविंग्स गाइज इसलिए गिरती हैं जब आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होता है या फिर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव होता है, और इंडिया के केस में इस पीरियड में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम है, ठीक है। आज की डेट में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है गाइज? व्हाट इज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट? मैक्रो गाइज, मैक्रो 101, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। आज की डेट में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अगर आप सेविंग बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो 4% है, एफडी में करते हो तो 6% के अराउंड मिलता है, ठीक है, 5.5-6% के अराउंड। इन्फ्लेशन अपने आप में 6% के अराउंड चल रहा है, तो दैट मीन्स आपको रियल रेट जो है वो 0% का मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेडिशनल लोग अब आपको फाइनेंशियल सेविंग्स के बजाय कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपको यहाँ 0 मिलेगा तो व्हाट विल यू डू एज अ हाउस होल्ड? कहाँ डालोगे पैसा? दिक्कत यह होती है स्वस्ति इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बॉन्ड्स, और ये ऑल्दो ये न्यू फिनटेक्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है, आईपीओज एंड बॉन्ड्स इन सब में अब मार्केट आ रही है, बट रिटेल इन्वेस्टर बहुत बहुत कम है, हार्डली 4-5 करोड़, आई थिंक 4-5 करोड़ भी नहीं है इंडिया में, 2-3 करोड़ होगा शायद से। आई गिव यू द एग्जैक्ट फिगर्स कि कितना है, बट रिटेल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत बहुत कम है। तो अल्टीमेटली द रिकोर्स इज कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लोग गोल्ड खरीदते हैं, ये सारी चीजें खरीदना शुरू करते हैं, तो वो फिजिकल एसेट्स खरीदना शुरू कर देते हैं रादर देन दिस। एंड तभी आप देख रहे हो, कैन यू सी कि ये जो है ये आपके ये इंक्रीज हो गया इस टाइम में, फिजिकल एसेट्स इंक्रीज हो गया, फिजिकल एसेट्स अभी भी काफी ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस पीरियड फिजिकल एसेट्स ज्यादा, तो इसलिए लोग रियल एस्टेट एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी कभी रिसेशन आता है वर्ल्ड में, सबसे पहले जो कमोडिटी इंक्रीज होती है वो गोल्ड होती है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट सेफ हेवन, डॉलर एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है। टू फाइनेंस दैट इन्वेस्टमेंट वी नीड टू समहाउ पिक आवर सेविंग्स। तो आज हम वो सेविंग्स के बारे में भी बात करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में। तो दूसरी चीज है कि जो पब्लिक सेविंग्स हैं वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई हैं, तो वी विल हैव टू टारगेट दिस। इफ यू सी हमारे पीक में जो ये सेविंग्स है ये पॉजिटिव थी, और ये जो पब्लिक अथॉरिटी वाली जो सेविंग्स थी वो आपकी -1.1% पे ही थी, बट फिर उसके बाद वापस इंक्रीज हो गई, और ये जो पब्लिक सेविंग्स है ओवरऑल गिर गई है। तो पब्लिक सेविंग्स जो आपकी गिर रही है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न, आपको इसको भी किसी तरीके से चेंज करना है। एंड अल्टीमेटली कॉर्पोरेट सेविंग्स तभी इंक्रीज होगी जब कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो
we will see today that we have to somehow reinvigorate the animal spirits when it comes to सेविंग्स क्योंकि until unless ये सेविंग्स होगी तब तक आप ये एनिमल स्पिरिट्स इन इन्वेस्टमेंट नहीं जनरेट कर पाओगे. If this is your aim, if this is your final goal, your intermediate goal is something is savings increase करना. क्योंकि इन दोनों का जो गैप है वो क्या है? सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप कहाँ से फाइनेंस होता है? कम ऑन गाइस, हम ये कर चुके हैं. सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप कहाँ से फाइनेंस होगा गाइस? ये रहा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप. या तो आप फिस्कल डेफिसिट रन करोगे उसके लिए, या फिर आप करंट अकाउंट डेफिसिट, या तो एक्सटर्नल सेविंग्स, या अगर आपके पास ये सेविंग्स नहीं, गवर्नमेंट ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट रन कर रहा है, तो दैट मीन्स ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई है. तो दैट मीन्स इसको फंड करने के लिए, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप को फंड करने के लिए आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट रन करना पड़ेगा. बट करंट अकाउंट डेफिसिट आप 2 से 2.5% से ज्यादा रन नहीं कर सकते हो. तो आपके पास ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड विद इन दिस रिस्ट्रिक्शंस द ओनली ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव इज समहाउ increase the amount of savings, especially financial savings of households, and अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर वो करे. समझ में आया गाइस? मतलब आई मीन राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एसेंस की किस तरीके से, अगर ये आपका घर है, मान लो ये आपका घर है, तो आप अपने घर को ऑर्डर में कैसे लेके आओगे. आपको अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, बट आपको सेविंग भी इंक्रीज करनी है अपने घर के अंदर. और सेविंग इंक्रीज दो तीन तरीके से ही हो सकती है. या तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दो. कॉर्पोरेट अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ज्यादा इनकम वो करेगा. हाउस होल्ड की आप फाइनेंशियल सेविंग्स कैसे इंक्रीज करोगे? एक कि आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो वो पॉजिटिव टेरिटरी में हो, दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो. तो दीज आर वेरी लॉजिकल थिंग्स. मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक से आप ये पूरा आंसर कर सकते हो. अगर आपको ये टेबल दे दी जाए तो आप लॉजिक से आइडिया दे सकते हो कि क्या होना चाहिए. देन पब्लिक सेक्टर डिससेविंग बहुत ज्यादा करता है. तो पब्लिक सेक्टर को अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको सब्सिडीज से निकाल के इन्वेस्टमेंट्स की तरफ डालना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ डालना चाहिए. तो वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कॉम्पोजिशन कि हमारा इन्वेस्टमेंट कॉम्पोजिशन जो है वो किस तरीके से गिर रहा है. वी हैड आल्सो सीन दिस सेविंग्स कॉम्पोजिशन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज आवर the overview of the economy. And when we will see the overview of the economy, we will talk about वही जो हमारा पुराना वाला पिछला पूरा पीरियड है, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके, जो हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके आज तक क्या क्या हमने किया है, हमारी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और जीडीपी ग्रोथ रेट किस पीरियड में क्या रही है, which we had briefly talked about. So what I have done is I have put it in the PPT format as well. Now, so growth through the years, when we see growth through the years, we have already seen this Hindu rate of growth वाला पीरियड कि उसमें क्या हुआ. रिफॉर्म्स के पीरियड में भी सी कि रिफॉर्म्स के पीरियड के अंदर हमारा जो अर्ली रिफॉर्म्स थे वो राजीव गांधी ने किए थे, बट वो जो रिफॉर्म्स थे वो वर एडहॉक रिफॉर्म्स, पीस मील रिफॉर्म्स, not big bang reforms. Those were pro business reforms rather than pro market reforms. हमने इन चीजों के बारे में बात करी. एंड 1991 के अंदर जो हमने रिफॉर्म्स करे, और ये जो इस पीरियड के अंदर जो एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आया वो इसलिए आया क्योंकि इस पीरियड में आप ह्यूज फिस्कल डेफिसिट्स रन कर रहे थे. यू वर रनिंग ह्यूज फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. तो ये जो आपने दो डेफिसिट रन किए उसकी वजह से जो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप था वो एक्सप्लोड कर रहा था. तो इस सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को आप इन दोनों सोर्सेस से कर रहे थे, और अल्टीमेटली एक टाइम आया जब ये अफोर्डेबल नहीं रह गया, तो आपका बीओपी क्राइसिस आ गया और ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया. तो आपने रिफॉर्म्स करे, एंड रिफॉर्म्स वर फोकस्ड ऑन योर स्ट्रक्चरल एंड स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स. आई हैव मेंशन्ड ऑल द मेजर रिफॉर्म्स हियर. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज द लेट 90s के अंदर हमने बात करी थी कि लेट 90s के अंदर हमारा ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन किया था. सो इफ यू रिमेंबर गाइज, ये वाले पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाले पीरियड के बारे में, लेट 90s के बारे में. लेट 90s के अंदर ईस्ट एशियन क्राइसिस आया, एग्रीकल्चरल स्लो डाउन था. रिमेंबर आई टोल्ड अबाउट एल नीनो वाले ईयर्स. तो 2000-2002 के बीच में आपके एल नीनो ईयर्स थे. एंड देन यू हैड सेट बैक टू दी फिस्कल करेक्शन, आपका फिस्कल डेफिसिट फिर से बढ़ गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो गया. तो इंटरेस्ट रेट हाई था. बिमल जलान जी जो थे हमारे, जो आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने इंक्रीज करा होता है इंटरेस्ट रेट्स. देन व्हाट फॉलोड वाज द गोल्डन एरा. गोल्डन एरा के अंदर हमारे सारे सेक्टर्स बहुत तेजी से ग्रो करे. वी वर ग्रोइंग अराउंड 8.5%. मार्केट के अंदर देयर वाज अ वेरी बिनाइन environment in terms of investment environment. Corporate profitability बहुत ज़्यादा अच्छी थी. Loose monetary policy थी. Remember we had talked about the loose monetary policy throughout the world in this period. ठीक है.
तो इस लूज मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इंडिया में काफ़ी सारे फ्लोज आए थे, बोथ पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज. देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एमएसपी भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया हुआ था, तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में था, तो एवरीथिंग वाज इन फेवर एंड दैट्स व्हाई वी ग्रू एट अ वेरी फास्ट पेस. हमने इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात करी. Then when it comes to the great slowdown between 2012 and 2014 and then extended till 2000, अगर हम overall extent देखें तो ये slowdown का जो extent है वो probably इतना नहीं है, but अगर हम फिर भी बात करें कि 2019-20 में तो फिर भी slowdown आ गया. So we saw the reasons of the slowdown. What were the reasons of the slowdown? There were 5 major reasons. Monetary factors थे कि आपने बहुत ज़्यादा आपने monetary surplus दे दिया था और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था. एंड उसके बाद बाय 2010 जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था तो आपको मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए. सो व्हाट हैपेंड वाज कि इस टाइम पे डी सुब्बाराव वाज द आरबीआई गवर्नर. आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करना पड़ा. जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे. इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ना पड़ा शुरू हुआ कि हाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, उसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी फॉल होनी शुरू हो गई और ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये एनपीए में कन्वर्ट होने शुरू हो गए. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था हमारा इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग 2012-2004. एंड जो आपका स्टिमुलस था दैट वाज समथिंग लाइक putting the body on steroids, where your fiscal stimulus was basically on tax cuts and increasing revenue expenditure. तो बेसिकली आप कह रहे हो कि मैं बोरो कर रहा हूँ, आई एम बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, बट मैं बोरो करके मैं अपनी एजुकेशन में पैसा ना डाल के मैंने उसको एक मर्सिडीज खरीद ली है. नाउ मर्सिडीज इज जस्ट अ वाइट एलिफेंट. तो आप मर्सिडीज खरीद लोगे, आप 2-4 दिन आप दिखा दोगे मार्केट में कि हाँ यार मैंने मर्सिडीज खरीद ली है, बट अल्टीमेटली आपको उसके पैसे वापस करना है. अगर आप ये पैसा एजुकेशन के अंदर डालते तो हो सकता है आप कुछ साल में पैसा कमा के वापस अपने लिए कोई मर्सिडीज खरीद सकते थे. सो दिस इज समथिंग वो आप कर रहे हो. ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो यू आर डूइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ, और अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे तो वो आपको रिवाइव तो कर देगा बट लास्टिंग ग्रोथ नहीं देगा. So this is what happened in the economy in that period. And then you had incomplete withdrawal of the stimulus, जिसकी वजह से crowding out, जो हमने बात करी कि crowding out हुई, गवर्नमेंट खूब सारा पैसा बोरो करके मार्केट से बोरो कर रही थी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का पैसा नहीं था. And in this period as well we had high domestic inflation and negative real interest rates. ठीक है, negative real interest rate आपको मैंने बता दिया क्या होता है. It is real interest rate is basically इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन. तो आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई था और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना नहीं था, तो इसलिए ये नेगेटिव होना शुरू हो गए थे रिटर्न्स. ठीक है, तो उसकी वजह से आपके इंपोर्ट्स और ज़्यादा, आपकी करेंसी अगर ऐसा होगा तो आपके कंट्री से आउटफ्लोज बहुत सारे हो जाएंगे. एक तो इस पीरियड में एक टेपर टैंट्रम भी आया था 2013 में. टेपर टैंट्रम कि यूएस ने कहा था कि मैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा हूँ और इंडिया के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो रियल रेट है वो ज़्यादा अच्छा मिल नहीं रहा, तो वापस आउटफ्लोज होने शुरू हो गए थे. तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इंडिया का इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैड अ नियर कोलैप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कोई ग्रो नहीं कर रहा था इस पीरियड के अंदर. इफ़ यू गो बाई दी ओल्ड जीडीपी स्टैटिस्टिक्स, तो जीडीपी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी वो 0.4% की थी इस पीरियड में, 12 से 14 के बीच में. So all of this probably led to the slowdown. Although उसके बाद 2014 के बाद जो नया statistics आता है on the basis of new GDP data, वो कहता है कि हम 7% के राउंड ग्रो कर रहे हैं, बट देयर इज अगेन a lot of issue कि हमारी GDP ग्रोथ रेट 7% थी कि नहीं थी, और अगर थी तो हमारे बाकी सारे इंडिकेटर्स क्यों नहीं दिखा रहे कि 7% ग्रोथ थी. तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डेटा के ऊपर एक इशू आ जाता है. Then comes the issue of that how would you revive the economy. Now this is the main aspect जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर कि how would you revive the economy. And इसके लिए you need to see कि बॉस हमें सेविंग्स कैसे इंक्रीज करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज करना है. ठीक है, ये दो मेजर चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट. बिकॉज until unless you are able to increase, और इसका गैप जो है वो हमें दे रहा है कि
एक फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, इसका गैप हमें बता रहा है कि फिस्कल डेफिसिट आप कितना मेंटेन कर सकते हो, और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना मेंटेन कर सकते हो। और लास्ट हम चीज़ बात करेंगे कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें कहाँ करनी है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। सो अल्टीमेटली दिस रीडिंग बेसिकली प्रोस्क्राइब्स, आज हम सेविंग्स के बारे में बात करेंगे बस, ठीक है, कि हमें अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो व्हाट नीड्स टू बी डन। we now know that we need to increase our GDP। अगर नेक्स्ट कुछ सालों में ग्रो करना है तो हमें 8% से GDP ग्रो करनी है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। इफ वी वांट टू इंक्रीज द GDP बाय 8%, दैट मीन्स कि हमारा इन्वेस्टमेंट रेट जो होना चाहिए 8 या 9% अगर आप बोलो, तो इन्वेस्टमेंट रेट जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 35-36% बीच में कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रेट 35-36% चाहिए तो उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स चाहिए, क्योंकि सेविंग्स आपको कम से कम 33-34% चाहिए होंगी, क्योंकि इसका जो गैप है वो सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट आप सिर्फ 2% के अराउंड रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए एक मैथमेटिकल फिगर बन जाती है कि हम किस तरीके से अपनी मैथमेटिकल फिगर को सेट करें टू सेट एवरीथिंग इन द इकोनॉमी, राइट। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सेविंग्स पार्ट। सो व्हेन इट कम्स टू द सेविंग्स पोर्शन, सेविंग्स के लिए वी सी दैट यहाँ आप देख रहे हो अभी हमारी सेविंग्स रेट जो है वो कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स 30%, 30.5, एंड आई थिंक आई शोड यू, यस ये देखो 2019 का 18-19 का जो सेविंग्स है हमारे पास 31.4% का है, ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो कि ये हमारा ऑलरेडी सेविंग्स कितना चल रहा है, तो इसको हम इंक्रीज कर, सो 30.5% 2014 का 17-18 का बता रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसको पहले तो हमें इस रेंज में लेके आना है, बट ये तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पैंडेमिक आ चुका है। एंड देन कैन यू सी कि 2027 से 31 के बीच में तो कह रहा है कि आपको सेविंग्स जो है वो 40% करनी है। तो अगर आपको ये 40% करनी है तो आपको मेजर पुश जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं, क्योंकि इसका एक बल्क शेयर जो है, सो इफ यू सी अराउंड 28/41, ठीक है, 28/41 जो है ये आपका 70% ऑलमोस्ट यू कैन से कर लो तो आपका 4/6 या, ठीक है। तो 66% के अराउंड आपका 60-66% के बीच में अभी भी आपका हाउस होल्ड सेविंग्स आ रहा है। तो अगर आपका हाउस होल्ड सेविंग से इतना पैसा आ रहा है तो आपको बेसिकली किसी तरीके से हाउस होल्ड के लिए सेविंग्स इंक्रीज करनी है। हाउस होल्ड की सेविंग्स आप कैसे इंक्रीज कर पाओगे, हाउस होल्ड की सेविंग्स, और उसके अंदर भी आप फाइनेंशियल सेविंग्स चाहते हो, तो दैट मीन्स एक तो आपको इन्फ्लेशन लो करना है, योर इन्फ्लेशन शुड बी इन कंट्रोल। आपको इन्वेस्ट जो भी एक हाउस होल्ड है उसको रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पॉजिटिव मिलना चाहिए। देन द अदर फैक्टर दैट द हाउस होल्ड नीड्स टू सी इज कि बॉस मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, और तीसरा मेरे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है। इंडिया में अभी भी 50% लोग आर अनबैंक्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज चंक दैट पीपल नीड टू गो टूवर्ड्स कि अगर उनको बैंकिंग चाहिए तो जो जनधन अकाउंट खोल रहे हैं, या फिर जो मैंने आपको कल बताया था ई-रूपी, ये भी एक इनिशिएटिव है, जनधन अकाउंट्स हो एक इनिशिएटिव है। तो इस तरीके से आप यू वांट टू गेट पीपल टू दी सेविंग्स टू दी बैंकिंग सेक्टर एंड दी फाइनेंशियल सेक्टर, तो उससे आपका मेजर इंक्रीज होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो वांट कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े, ठीक है। एंड जो दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि किसी तरीके से आपको गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करना है, और वो ही जो है ये पब्लिक सेक्टर है दिस बेसिकली मीन्स कि आपको किसी तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, विच एसेंशियली मीन्स कि आपको अपनी सब्सिडीज को कंट्रोल करना, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सेविंग्स कर पाएगा। तो आपको गवर्नमेंट सेविंग्स भी इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो ये इफ यू ऐड दीज अप, तो तीन मैंने बताया था ना, 27.9, 9.6 एंड 3.4, तो ये मिलके ये बन जाते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है इन द कमिंग ईयर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट एज वेल। एक बार इन्वेस्टमेंट की जो टेबल है, लेट मी जस्ट शो यू थ्रू द रीडिंग्स एज वेल। See, this is what we are talking about. We are talking about how will India basically achieve that high growth rate, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, that if India wants to achieve this growth rate of 8 to 9% between this period,
देन व्हाट नीड्स टू हैपन, हमें अपना इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा. तो देखो वो क्या कह रहे हैं. या कैन यू सी दिस, ये मैंने ऊपर वाली फिगर यही ली हुई है. कैन यू सी कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को किसी तरीके से हमें इस लेवल पे लेके जाना है. अभी इन्वेस्टमेंट आपकी इनफैक्ट अब तो इन्वेस्टमेंट मिड ये 28-29% है, तो यहाँ से भी और फॉल कर गई है. आप कह रहे हो कि किसी तरीके से मुझे इसको 43 तक लेके जाना है. एंड साइमल्टेनियसली रिमेंबर दिस टर्म गाइस 43, साइमल्टेनियसली आप कह रहे हो कि मेरा जो ICOR है, ICOR जो है इस वक्त 4.9 है. तो आपको ये भी अपना कम करना पड़ेगा, ICOR भी आपको कम करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप सेम ICOR के साथ जाते हो तो आप 43 को भी अगर आप डिवाइड करोगे 5 से, ठीक है, तब भी आपकी 8.6% की ग्रोथ रेट आएगी. तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो तरीके हैं. एक आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, आपने ये करा, बट आपको साइमल्टेनियसली इसको भी कम करना है, क्योंकि अगर आप इसको 4 के अराउंड ले जा पाए, ठीक है, 4 तो मुश्किल है, 4.2 4.3, तो आप 9% या 9.5% से आप ग्रो कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग. देन एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर अच्छा बॉस आपको पता चल गया कि आपको बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है, बट इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? इन्वेस्टमेंट हैज टू बी कम फ्रॉम डोमेस्टिक सेविंग्स. ठीक है, और वही 3 कंपोनेंट है सेविंग्स के. और इसके अलावा आप 2 से 2.5% जो है यू कैन टेक करंट अकाउंट डेफिसिट. तो इसका गैप जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का गैप, अगर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स तो उसका जो 2.5% ऑफ GDP का गैप है, ये तो आप करंट अकाउंट से कर सकते हो, बट बाकी सारा आपको डोमेस्टिक सोर्सेज से ही करना पड़ेगा. एंड द अदर थिंग इज ICOR को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, विच वी हैव ऑलरेडी टॉक. फिर इट टॉक्स अबाउट हाउस होल्ड सेविंग्स, हाउस होल्ड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड पब्लिक सेविंग्स. सेम चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर, ये देखो ये जो है गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट और ये जो हाई सब्सिडीज रन करते हैं हम, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा सो दैट गवर्नमेंट भी सेव कर पाए. Then external savings I have already told you. Now what we need to see, now the other thing that we need to see is कि हमें दूसरी चीज़ जो है, गवर्नमेंट अगर हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है तो किसको इन्वेस्टमेंट हमें इंक्रीज कराना है? हमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कराना है. दैट मीन्स फॉर दिस वी नीड टू टेक अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स. अगर हम प्राइवेट चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट ज़्यादा करें. नाउ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन गाइस, कि आप एक इन्वेस्टर हो तो आप किस चीज के बेसिस पे इंडिया में इन्वेस्ट करोगे? व्हाट विल यू सी? आप चाह रहे हो कि इंडिया में इन्वेस्ट करें लोग, इंडिया के बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट करें, बाहर वाले भी आके इन्वेस्ट करें, तो वो क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी चाहिए किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले? स्टेबिलिटी. यस, सबसे पहले तो आप स्टेबिलिटी देखते हो. ठीक है, कि अरे भैया कंट्री ऑटोक्रेटिक है, मिलिट्री से रन करती है. जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार विल नेवर अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, पाकिस्तान विल नेवर अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. जब तक आपकी इकोनॉमी वैसे ही स्टेबल नहीं है, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, तब तक तो पहले कोई हाथ लगाएगा ही नहीं आपको. उसके बाद डूइंग बिजनेस. ठीक है, डूइंग बिजनेस इज बेसिकली कैसे आपका ऑपरेशन करते हो, तो वो एक फैक्टर है. बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे पहले आप देखते हो कि बहुत इस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. इस कंट्री में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट होता होगा? व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, मालविका? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? क्या? रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज. सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली अगर if I was at the helm of any of these committees, I would put a majority of my money on सबसे पहले तो ये waterways, shipping and inland shipping. और inland shipping basically होती है रिवर्स के ऊपर, क्योंकि सबसे तेज तरीका, one of the fastest ways and one of the cheapest ways to do it is inland shipping, अगर आप अच्छे से करो तो. बट इंडिया के अंदर बहुत खराब है ये inland waterways की हम बात करते हैं, वाटर हाईवेज के बारे में बात करते हैं. यू विल प्रॉब्ली लर्न अबाउट दिस इफ यू प्रिपेयर फॉर सिविल्स, कि इनलैंड हम वाटरवेज एंड वाटर हाईवेज के बारे में बात कर रहे हैं. तो वो हमें हाईवेज क्रिएट करने हैं. दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेल एंड फ्रेट रेल, जो हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बात कर रहे हैं. एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, एक वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर. ठीक है, अगेन दिस इज समथिंग दैट व्हेन यू कम टू सिविल्स यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों रहा, कहाँ से कहाँ तक है और क्या कैपेसिटी है और किस बेसिस पे बन रहा है.
तो बेसिकली आपको जल्दी से ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़ें, क्योंकि वर्ल्ड हैज रीच टू अ कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम. कैन यू टेक अ क्यू कि जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट क्या होगा? आई गिव यू हिंट. थिंक ऑफ Amazon. Not just delivers in time. It actually tells you कि आज आप कोई चीज़ ऑर्डर करो Amazon पे जाके, तो आपको बता सकते हो कि बॉस ये 2 दिन बाद डिलीवर होगी, एग्जैक्ट डेट बता देता है वो. एंड दिस इज ओनली when you have a very huge logistical chain. तो अगर आपका logistical chain, and that's why Amazon in terms of its जो basic जो वो है कोर वैल्यू है, वो उसका लॉजिस्टिक्स है. अनबीटेबल लॉजिस्टिक्स है थ्रू आउट दी वर्ल्ड. तो ये आपको, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, रोड्स का, रेलवेज का, वाटरवेज का, सो दैट जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इजीली हो. सो यू वुड नीड फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा हो. दूसरा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो वो कम हो मार्केट में. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि क्राउडिंग आउट ना हो. दैट मीन्स गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट्स जो हैं वो कंट्रोल पे करके रखें. देन उसके बाद आपके जो टैक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो आप बोलते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो अच्छा होना चाहिए. आपका टैक्स रिजीम जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ठीक है. इट शुड नॉट बी द केस जो ऐसा आपने अभी केन इंडिया का इशू देखा या वोडाफोन का देखा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कर रहे हो आप, टैक्स टेररिज्म जो जिसको बोला जाता है, तो वो सब नहीं कर रहे हो, ठीक है. एग्जिट पॉलिसीज जो होनी चाहिए, बैंक्रप्सी लॉज जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए एंड फास्ट होने चाहिए. विद इन जो हम, अगर हमारा बैंक्रप्सी लॉ देखो तो बैंक्रप्सी लॉ IBC कहता है कि अगर आप बैंक्रप्ट हो तो 270 दिन के अंदर हम पूरा क्लियर कर देंगे. बट ये आज की डेट में 450 डेज ले रहा है. तो विद इन एन ईयर अगर आप कोई पैसे नहीं दे रहा है या कोई बैंक्रप्ट हो रहा है, तो विद इन एन ईयर आप लिक्विडेट करके आप पूरा सेटल कर दोगे सबके अकाउंट्स, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. इंडिया में ये सारी चीज़ें लाना ज़रूरी है. तभी आप सोच सकते हो कि प्रोग्रेस कैसे होगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. और वही सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एंड ये आगे ना, ये तो यहाँ जाके तो ख़त्म हो गया. बट अगेन ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की मेजरली बात कर रहे हैं, और ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं in this portion. Okay. So what I'll do is I'll just mark this particular reading, और हमने already reading कर ली है. In Monday's class I will just add these couple of slides onto this deck, and then we can finalize. तो hardly आधा घंटे की भी requirement नहीं होगी. I've already given you the essence that what needs to be done more than what is there in the reading. In fact जो मैंने आपको बताया, ये सारे जो points बताए, ये आपकी रीडिंग में, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये आपकी रीडिंग में अब नहीं है, ये पुरानी वाली रीडिंग में होते थे, ठीक है. सेक्शन 3, सेक्शन 4 मैंने आपको वो भी बता दिया. तो बट व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली मेंशन एज एन एड ऑन वैल्यू added factor. As I told you, value addition gives you more marks and better optics in terms of examination. So this is about it, guys. Let's meet on Monday and then finish. Any doubts? समझ में आया? चैप्टर समझ में आया? दिस इज द मोस्ट डेटा हेवी चैप्टर दैट वी हैव, बट उसका एसेंस समझना बहुत जरूरी है. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, मोर और लेस यू हैव अ bird's view of the economy. The slide that I had put, if you get this, you have this overview. You already have this overview. Now your life will be simple. Now what we need to do is we would do in Indian economy 2 and Indian economy 1 के अंदर भी बाकी सारे sections में we will start for a deep dive. I will have a PPT for that as well. We will then have a deep dive into कि आपने overview ले लिया economy का. अब now let's go into specific areas and then see what is happening there. So good afternoon, guys. Let's finish our reading on Rakesh Mohan's article, Moving India to a New Growth Trajectory. So what we had seen was that how savings and investment go into GDP growth rate. हमने उसमें देखा था कि savings में we have 3 constituents, households, corporates and government. Similarly investments में we have these three constituents, and then investment finally gets converted into GDP growth rate through the concept of ICOR, which is the efficiency of capital. तो आपको अगर GDP बढ़ाना है तो आपको या तो आप ICOR कम कर लो या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर लो.
अब आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाह रहे हो तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती है या तो सेविंग्स से, या तो डोमेस्टिक आप सोर्सेज से लेके आओ, या फिर आप बाहर से बोरो करो, विच इज करंट अकाउंट डेफिसिट. सो वी ऑल्सो सॉ दिस एंटायर प्रोसेस इन दिस इंजेक्शंस एंड लीकेजेस वाला जो एक्सियम है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. Then in this basically graph, what we did was how has the savings and investment moved in the country over the years, and we saw जैसे हमारे ये वाला portion था, let me highlight it through a laser. We saw that 2003 to 2008 was the period जब हमारा GDP growth rate सबसे highest था, देखो 8.8, ठीक है. एंड इस पीरियड के अंदर यू सी दैट योर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ऑल ऑफ देम वर ग्रोइंग. एंड इन दिस पीरियड बिटवीन 3 to 8 यू कैन सी योर मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो है आपका, देखो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट और आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स जो है, सेविंग्स जो है, सेविंग्स 33% पे पहुंचा एज एन एवरेज. बट 2007 वॉज द ईयर इन विच यू हैड द हाइएस्ट लेवल्स, तो ये 36% पहुंच गया था इन 2007. एंड सिमिलरली ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट 38.8% पहुंच गया था इन 2007, और ओवरऑल एवरेज इज 33.7. तो ये बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट पेस से ग्रो किए थे. एंड बिकॉज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट पेस से, सेविंग्स फास्ट पेस से इंक्रीज हुई, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया और इसीलिए जीडीपी ग्रोथ रेट आ गया. At the same point of time, ICOR was also very manageable, around 4.1, 4.2%, 4.2 पे. There is no percentage in ICOR. Then आफ्टर दैट वी सी अ स्लो डाउन. हमने स्लो डाउन के सारे रीजंस देखे थे, और फिर हम वो स्लो डाउन देखा कि उसमें हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग्स हैं वो अब गिर रही हैं, ठीक है. दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. एंड स्पेशली हमें फाइनेंशियल सेविंग्स जो है हाउस होल्ड सेक्टर की, उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यही इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. So this is one target of ours that we need to achieve. And the other thing that we need to see is कि corporate जो हाउसहोल्ड जो corporates हैं, इसकी तो सेविंग्स इंक्रीज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. पब्लिक सेक्टर की सेविंग्स के बारे में हम आज बात करेंगे, that how do we increase public sector saving. So we will talk about these 3 sectors in our entire discussion today as well. This is where we saw that how investment composition, this is, I told you that I've taken this data from Central Statistical Organization's website, and through that what I've just plotted is कि हमारा जो GCF है वो कैसे, GFCF जो है वो कैसे गिर रहा है, ठीक है. तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट रेट गिर रहा है, और नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट रेट गिर रहा है, वी ऑल्सो सॉ कि हमारा ICOR इंक्रीज कर रहा है. तो दिस इज नो लॉन्गर डिवाइडेड बाई 4, दिस इज नाउ डिवाइडेड बाई 5. तो अगर आप 5 को अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी कम होनी शुरू हो जाएगी. एंड दैट इज़ वाई यू सी कि 2019-20 का जो ग्रोथ रेट है दैट वाज अराउंड 4.3-4.4%, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट रेट बहुत तेज़ी से गिरा. एंड द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ कि आपका हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो है जो 15% एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, गाइज ये सब कुछ एज अ परसेंटेज ऑफ GDP है, ये जो है ये 15% से आज की डेट में 11% पे पहुंच गया है. दिस इज़ अ मेजर कॉज वाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है. तो हमें हाउस होल्ड सेविंग्स विच इज़ द बेडरॉक ऑफ सेविंग्स इन इंडिया, उसको इंक्रीज करना है. एंड वी विल सी दैट हाउ डू वी इंक्रीज दो सेविंग्स, इसके बारे में हम बात करेंगे. देन इन टर्म्स दिस वाज इन्वेस्टमेंट की हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी गिर रही है. एंड इन्वेस्टमेंट ये जो बेसिकली हम कह रहे हैं फाइनेंशियल एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो हाउस होल्ड्स करते हैं वो गिर रहे हैं. तो हमें ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, और इस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन द हाउस होल्ड सेविंग्स. तो हाउस होल्ड सेविंग्स जो है देखो ये 23% से गिर के 19.6% पे आ गई हैं. सो अंटिल अनलेस हाउस होल्ड्स आर एबल टू सेव, दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट. So somehow we need to increase the household savings as well. And similarly we need to also increase public sector savings, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है वी विल सी टुडे काफ़ी डेफिसिट रन करता है. एंड अल्टीमेटली क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर डेफिसिट रन करता है इसीलिए वो क्राउड आउट कर देता है हाउस होल्ड सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को. सो वी नीड टू फोकस ऑन दीज एज वेल. देन वी सॉ द ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी. हमने ओवरव्यू के बारे में बात करी थी. So we saw the overview of the economy, and in the overview part what we saw was कि households का कैसा movement रहा है. Similarly हमारा movement corporate का कैसा रहा है, and movement of your private sector कैसा रहा है. Let's see that. So and not just that, we also did what was repeated in our previous reading. So in this section
So in this section, what we are doing is, in this section we are basically talking about Hindu rate of growth वाला period and reforms वाला period, जो entire reforms का period है, and then उसके बाद we are also seeing the reforms and then the late 90s and the early 2000. तो वो सारे के सारे जो factors हमने already discuss किए हुए हैं, all those factors are explained here. Then in terms of great slowdown, what we saw was that these are the 5 major reasons why there was a slowdown, and these are the 5 major solutions as well, that how would you revive the economy. So हमने monetary factors देखे थे, हमने fiscal factors देखे थे कि incomplete जो stimulus था आपने दे दिया और वापस नहीं लिया. Then crowding out हुई काफ़ी ज़्यादा, external front पे आप you were in a state of crisis and manufacturing complete collapse हो गया था, at least in this period. And धीरे धीरे slowdown ही आता गया, although the figures after 2014 are very conflicting. If you talk about high frequency indicators, तो वो दिखा रहे हैं कि decline कर रहा है आपका इतनी तेज़ी से manufacturing increase नहीं कर रहा, but country का GDP बहुत तेज़ी से increase कर रहा है. So this is what Rakesh Mohan says after 2014, is that there is no comprehensible data sets to basically compare the high frequency data with the normal data which the government gives through NSSO and CSO. Then the next thing that we saw was how do we revive the economy. Okay? Now in the revival, this is what we need to study today. How do in the revival process, how should we focus on certain factors कि वापस हमारा 8 to 9% का growth rate आ जाए. But remember guys, the reading when it's written was basically in the end of 2019 when there was no COVID scenario. So COVID scenario would set back everything because of the response that we had to do to basically counter the pandemic. Now our focus is on how to finance this growth path. हमें ये पता है कि हमें 8 to 9% grow करना है for between 2020 to 2035. So let me just point it out that. So our objective is that between 2020 and 2035, how do we grow to a path of say 8 to 9%. Now अगर ये path चाहिए, now I ask you guys, ये path चाहिए तो can you draw back and can you just go back and see कि इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा in terms of macro economics. हमें क्या क्या चाहिए होगा. अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे GDP growth rate, if I'm saying कि मुझे GDP growth चाहिए इस पूरे पीरियड में 8 to 9%, what does that imply कि मुझे क्या चाहिए होगा पीछे. 2 चीज़ें बताओ गाइस, कम ऑन गाइस, क्या चाहिए होगा मुझे पीछे. स्वस्ति, दीक्षा. सर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स. इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, तो एक तो पॉइंट हो गया इन्वेस्टमेंट की चाहिए होगा, और इन्वेस्टमेंट के पीछे चाहिए होगी सेविंग्स. दूसरा क्या कर सकते हो नेक्स्ट गाइस, अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग नहीं हो तो हम क्या करते हैं. ये तो डोमेस्टिक सोर्सेज हो गया ना. सर एक्सपेंडिचर, फिजिकल एक्सपेंडिचर. नो आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये तो डोमेस्टिक सोर्सेज हो गए. अगर डोमेस्टिक सोर्सेज से नहीं आता तो और कहाँ से आता है. फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज व्हाट आई वांटेड. दैट मीन्स करंट अकाउंट डेफिसिट से कर सकते हो. तीसरा और क्या कर सकते हो गाइस, एफिशिएंसी के फॉर्म में क्या कर सकते हो. एफिशिएंसी के फॉर्म में क्या कर सकते हो. कम ऑन गाइस, इन्वेस्टमेंट कैसे कन्वर्ट होती है जीडीपी ग्रोथ रेट में. So to basically decrease the ICOR, but I don't know how we'll do that. Yeah. So the third thing is ICOR. ICOR more or less is not directly in the hands, in our hands, but हाँ efficiency के साथ, for example, because of COVID, what has happened is efficiency in the private sector has increased. ठीक है, all these IT firms, इन सब में efficiency बहुत ज़्यादा increase होगी because they don't have to take up that office space. On the go you can have all the work done. Your employees can be now instead of 8 hours you can employ them for 16 hours. So that is how efficiency can be increased. So आपको ICOR अपना efficiency of capital जो है वो increase करना पड़ेगा. But what the problem is that in the last 5 odd years, 7 odd years, the ICOR in India has been increasing from somewhere around 4.3, 4.4. It has increased to 4.9. You can find that in your reading. Okay, so these factors we need to check. Then comes that how do you how does one finance this growth scenario. So if we need to go from, अभी हमारा growth कितना चल रहा था इससे पहले
ठीक है, इससे पहले 7 to 7.5% का ग्रोथ रेट चल रहा था। अगर आप एवरेज ग्रोथ रेट देखो 2019-20 का मत लेना, 2021 का मत लेना। 19-20 का गाइज यू नीड टू नोट दीज ग्रोथ रेट्स। 19-20 का ग्रोथ 4.3%, 2021 का ग्रोथ -7.3%, 21-22 का ग्रोथ 9.5%। दिस इज एक्सपेक्टेड। तो ये आप रीडिंग में दे नहीं रखा, बट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स प्लीज मेंशन दीज ग्रोथ रेट्स इफ यू वांट टू इंक्रीज, एंड जो भी करंट फिगर्स होंगी प्लीज मेंशन दोज इफ यू वांट टू इंक्रीज योर मार्क्स। ठीक है, तो नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन इज, इफ यू वांट टू ग्रो एट 8 to 9%, यू नीड टू फाइनेंस दिस पर्टिकुलर ग्रोथ। एंड हमारा ट्रेडिशनली जो हमारा ग्रोथ रहा है दैट हैज बीन फाइनेंस थ्रू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एंड दिस डोमेस्टिक हाई इन्वेस्टमेंट is financed through domestic savings and moderately supplemented by external savings। ठीक है, तो हमने कहा है कि हम अपना एक्सटर्नल जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2 to 2.5% ऑफ जीडीपी रखेंगे, बाकी सारा जो डिफरेंस है वो हम अपने यहाँ से लाएंगे। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, जो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 43% है और हमारा सेविंग्स 41% है, तो इनका गैप अगर इफ यू सी राइट नाउ, तो इसका जो गैप आ रहा है आपका वो अराउंड 2.3-2.4% का, जो 2.4% का जो गैप है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस आएगा, तभी आपको ये 2.5 दिख रहा है इन दोनों का गैप जो है। बाकी सारा सोर्सेज हम डोमेस्टिक सोर्स है। तो बेसिकली हम कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, और इन्वेस्टमेंट का मेजर सोर्स होगा सेविंग्स। एंड उसके लिए व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि अभी राइट नाउ योर इन्वेस्टमेंट रेट इज समवेयर अराउंड 31%। अगर आप देखो कि अभी कुछ रीजन में यहाँ पर 32% दे रखा है, बट ओवरऑल इफ यू सी द इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस लास्ट फ्यू इयर्स इज अराउंड 31%। उसको इंक्रीज करके यू नीड टू इंक्रीज इट टू 33-35% बिटवीन 2020 and 25, एंड देन इंक्रीज इट टू 35 to 38% बिटवीन 2035 and 38। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो देखो आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करो। आप यहाँ पर ये रेट है, फिर उसके बाद इसको इंक्रीज करते हुए जाओ टू अ सर्टेन लेवल। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर सीन टू बी इंक्रीजिंग। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी कह रहा है कि आपको इसको फाइनेंस करने के लिए सेविंग से फाइनेंस करना पड़ेगा। तो सेविंग्स जो आपकी अभी चल रही हैं 30 to 33% के बीच में, उसको इंक्रीज करके 33 to 36% आपको करना पड़ेगा। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट हैज टू बी स्टेबलाइज टू अराउंड 2 to 2.5%। उनका जो गैप है, सेविंग इन्वेस्टमेंट का जो गैप है, सेविंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट का जो गैप है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 to 2.5%। And the other issue that the reading talks about is that you need to somehow increase the ICOR, decrease the ICOR from around 5, which is at the current level, to later to 4 and sub 5 level, so that आपकी efficiency of capital also increases. So these are the major steps। ये आपको steps याद रखने कि this is what the reading talks about, कि this is how you, on a broad scale, this is how you will achieve your target, or these are your major macroeconomic targets। Now what we need to see is that what are the finer print, what is the finer print, how will you finance this। ठीक है, कि इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग्स कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, सो फॉर दिस we have to focus on 5 major domains। Now what are these 5 major domains? कहाँ पर हम अपना रेवेन्यू रेज करेंगे और कहाँ पर हम एक्सपेंडिचर करेंगे, दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। एंड दीज आर हाउस होल्ड सेविंग्स। हम हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में बात करेंगे कि हाउस होल्ड सेविंग्स कितनी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। वी विल टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सेविंग्स, कि कॉर्पोरेट सेविंग्स को किस तरीके से, क्योंकि दीज आर की फंडिंग मैकेनिज्म्स, दीज आर योर फंडिंग मैकेनिज्म्स। ये फंड करेगा, ये फंड करेगा, ये फंड करेगा, तो हमें ये देखना है कि इनको कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये अगर हमने इंक्रीज कर लिया, ठीक है, अगर हमने ये इंक्रीज कर लिया और प्लस साथ में पब्लिक सेविंग्स भी हैं, ठीक है, अगर हमने ये इंक्रीज कर लिया, ये सारी इंक्रीज कर ली, तो फिर हम आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर पाएंगे। सो बिकॉज सेविंग्स विल बिकम इन्वेस्टमेंट, तो हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर पाएंगे, एंड देन वी नीड टू फोकस आवर इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर मेथड्स हाउ टू इंक्रीज सेविंग्स, एंड देन take it to investment, and then invest in these areas, invest in manufacturing,
and invest in infrastructure. So this is what the entire conclusion is कि savings आप increase करो और savings increase करके उसको investment में इन दो areas में लेके आओ. Let's read through that as well. So if we talk about savings and investment, अगर हम फाइनेंसिंग ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें तो फाइनेंसिंग हमें कैसे करनी है, हम फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे. इन्वेस्टमेंट के बारे में जस्ट रीड ऑन इन द रीडिंग. इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो है मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है और उसको इंक्रीज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना है. सो दैट आई हैव नॉट इंक्लूड इन दी स्लाइड्स. दिस इज द लास्ट स्लाइड दैट वी हैव. सो हाउस होल्ड सेविंग्स क्यों इंक्रीज करना, बिकॉज हाउस होल्ड सेविंग्स आर द बेडरॉक ऑफ द इंटायर इकोनॉमी. हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स में सबसे ज़्यादा सेविंग्स का शेयर हाउस होल्ड का ही होता है. ठीक है, 60 to 70% जो सेविंग्स होती है वो हाउस होल्ड ही कर रहा होता है. नाउ इट हैज़ रीच्ड अराउंड 21% in 1997 till 2003 and then to 24% in this period. बट अब वापस ये सेविंग्स जो हैं गिर गई हैं और स्पेशली फाइनेंशियल सेविंग्स गिर गई हैं. ये एक मेजर कंसर्न है. और अब हमें कोशिश करनी है किसी तरीके से अपनी हमारी जो फाइनेंशियल सेविंग्स है वो अराउंड 7% के अराउंड पहुंच गई हैं. इसको हमें ऑलमोस्ट डबल करना है in the target period. When I talk target period, I'm basically talking about 2020 to 35 के बीच में. So इस period में we need to double this up, almost double this up. And वो कैसे achieve करेंगे? ये achieve करेंगे through more of financial inclusion, then use of fintech मतलब Paytm हो गया, Google Pay हो गया, ये सारी organizations हो गई जो basically fintech में आती हैं. ऐसे rural areas में you need or more technologies. Have you heard of a startup called Khatabook, guys? Khatabook, किसी ने सुना? Has anyone heard? Khatabook किसी ने नहीं सुना? अरे MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर है उसका. ओके, सो what we need is financial inclusion. We also need to focus on lower inflation, क्योंकि until unless inflation high, अगर inflation high रह जाएगा तो क्या होगा? Inflation high की वजह से you will always have this thing. People will not be able to save. People will say that saving करने का क्या point है, especially financial saving, जब inflation उसको kind of denude करे जा रहा है उसको. तो अगर उसका denudation हो रहा है, पूरे accretion उसका क्या destruction हो रहा है आपकी saving का, तो people will not save in financial instruments. So they will rather save in gold, जो basically dead asset बन जाता है. So we need to focus on lower inflation as well. Similarly, अगर हम corporate savings की बात करें तो corporate savings और one of the major reasons कि corporate investment increase हुआ था between 2003 to 2008. तो corporate savings जो थी वो इसलिए increase हुई थी क्योंकि corporate profitability जो थी वो काफ़ी increase हो गई थी इस period में. And 2003 से 2008 में we almost doubled our corporate savings, and that was because of lower nominal interest rate. क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो रहेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सेविंग्स होगी. ठीक है, डू रिमेंबर दिस. देन फिस्कल कंसोलिडेशन की वजह से क्या होगा कि क्राउडिंग आउट नहीं होगी. प्राइवेट सेक्टर आराम से बैंक से लोन ले पाएगा. बैंक से अगर प्राइवेट सेक्टर लोन ले पाएगा तो इट रिजल्ट्स इन more investment, private investment. More private investment leads to more private profit, and more private profit leads to more private savings again. And then lower inflation again. Inflation is a huge factor in terms of investment, and we need to target that our corporate savings are in the range of 12 to 15% in this target period. Then with respect to public savings and fiscal policy, we need to reduce our subsidies. I mean, आज की डेट में क्या होता है? आज की डेट में इलेक्टोरल पॉपुलिज्म होता है. एंड व्हाट इज दिस इलेक्टोरल पॉपुलिज्म? कि जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वो कहती है कि मैं पावर फ्री में दे दूंगी. एक तो कहते हैं कई बार पावर फ्री में दे देंगे, दूसरा कहते हैं कि हम एग्रेरियंस लोन माफ़ कर देंगे. ठीक है, तो ये इस तरीके की जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही होती है उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे. एंड बिकॉज गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है इसलिए गवर्नमेंट सेविंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, और गवर्नमेंट सेविंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इसलिए ओवरऑल, और इसकी वजह से गवर्नमेंट और बोरो करना शुरू हो जाती है. अल्टीमेटली दिस लीड्स टू मोर ऑफ बोरोइंग एज वेल. एंड जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो गवर्नमेंट जो है वो क्राउड आउट कर देगी प्राइवेट सेक्टर को भी और हाउस होल्ड सेक्टर को भी मार्केट से. इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा. सो द गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो एन FRBM रूल बेस्ड कंसोलिडेशन. एंड देन ऑन द रेवेन्यू साइड इट ऑल्सो नीड्स टू फोकस ऑन कि हम अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करें.
इंडिया में पर्सनल इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज जस्ट 2%, ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज जस्ट 10 to 11%. तो इसको हमें इंक्रीज करना है, हमें वी नीड टू इंक्रीज आर टैक्स बेस. जो लोग टैक्स देते हैं वो हमें इंक्रीज करना है, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उसको कम करना है. एंड फाइनली एक्सटर्नल सेविंग्स को कैसे करेंगे? एक्सटर्नल सेविंग्स हम करेंगे थ्रू एक्सपोर्ट्स, कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर पाएँ, हम अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना पाएँ. वी गेट इन्वॉल्व इन मोर वैल्यू चेन क्रिएशंस in the world, and then perhaps we can then grow at 11 to 12% per annum in terms of our exports, which will help reach our exports as a percentage of GDP from 20% right now to somewhere around 35% in 2030-2035. तो अल्टीमेटली ये जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उतना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, तो और ज़्यादा फाइनेंस कर सकते हैं अपना. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दिस इंटायर रीडिंग गाइस. समझ में आया गाइस? So this is how you will finance the growth path. Any questions guys? Any questions?